خدا عجیب طور پر برکت عطا کر رہا ہے، میرا ایمان ہے ان پیغامات کے وسیلے سے خدا چھو رہا ہے۔ کل میں بہن شازیہ کے پاس تھا، سسٹر یاسمین کے بھی وزٹ کیا، تو سسٹر شازیہ نے کہ ان پیغامات سے جو برکت ملی ہے اس نے شیئر کی۔ میں ان کو 1 منٹ کے لیے بلاؤں گا کہ وہ آئیں، کہ کیا برکت خداوند نے ان کو ان پیغامات کے وسیلے سے دی ہے، وہ اس برکت کا جو انہوں نے پائی ہے اس کا شکر جو ہے وہ ذکر کرے کلیسیا کے ساتھ مل کر۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے ان دنوں میں مجھے بڑی برکت دی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں جب چھوٹی سی تھی تب سے نا خداوند کے ساتھ چلتی تھی، اور روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ خدا نے بڑی برکت دی تھی، مگر درمیان میں ایسا وقت آیا تھا کہ میں بالکل خداوند سے دور ہو گئی تھی۔ دور جو خداوند کے بندے ہوتے ہیں وہ بالکل دور تو نہیں ہوتے، مگر وہ لیول نہیں رہتا ان کا جو ہونا چاہیے۔ اور میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں کہ جب سے میں اس چرچ میں آئی ہوں، خداوند نے پھر سے نئے سرے سے مجھے اپنے لیے تیار کیا ہے، اور روحانی اور جسمانی طور پہ بہت سی برکتوں سے نوازا ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں پادری صاحب کے لیے بھی کہ وہ ہمارے گھر وزٹ کرتے، دعا کرتے، اور ان کے وسیلہ سے مجھے بہت برکت مل رہی ہے۔ Praise the Lord۔ ان پیغامات کے وسیلے سے خدا نے اپنی بندی کو چھوا، اسے برکت عطا کی ہے۔ اور ایک خاص بات پھر میں کرنے جا رہا ہوں، ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹے کے ہم شکل بننا ہے۔ کس کے ہم شکل بننا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیں، اس کو تھوڑا سا ادھر، یس، بیٹے کے ہم شکل بننا ہے، بیٹے کی مانند بننا ہے، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں کیا ٹھہرے؟ بے لوٹا ٹھہرے۔ کمپلیٹ نجات جسے ہم کہتے ہیں، کامل نجات کیا ہے؟ کامل نجات یہ ہے کہ ہم اس کے قد کے اندازے کے مطابق ہو، اور پھر اس کے بیٹے کی اس کی مانند نظر آئے۔ یہ ہے کمپلیٹ سالویشن۔ اگر کمپلیٹ سالویشن کوئی کہتا ہے کہ میں جو نجات پا چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ خداوند میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ اس کی مانند بن رہا ہے۔ آمین۔ آج بات کروں گا بیکم کرائسٹ لائک ان کمیونیکیشن۔ کیا ہے؟ بیکم کرائسٹ لائک ان کمیونیکیشن۔ پھر سے بولیے، کمیونیکیشن۔ نکالیے پہلے رومیو 8واں باب اس کی 29 آیت۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں بے لوٹا ٹھہرے۔ آمین۔ پھر دوسری کرنتھیوں اس کے 3 باب اس کی 12ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح سے منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی میں یہ دکھا پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم درجہ بدرجہ اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اس جلالی صورت پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بدلتے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک عمل ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپنی نئی پیدائش کے وقت سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ جس شخص نے نئی پیدائش حاصل کر لی ہے، جس شخص نے جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ حاصل کر لیا ہے، جس نے توبہ بپتسمہ حاصل کر لیا ہے، وہ شخص اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتا جائے گا۔ آمین۔ لیکن اگر کسی شخص نے حقیقی توبہ اور بپتسمہ نہیں پایا، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں حاصل کیا، وہ شخص جلالی صورت میں درجہ بدرجہ نہیں بدلے گا۔ لہٰذا
اگر ہم یہ اعلان اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں یا ہم نجات یافتہ ہیں اور ہم خدا کے لوگ ہیں یا ہم مسیحی ہیں تو پھر ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. آمین. اور آج جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے یسوع مسیح کی کمیونیکیشن کے اوپر بات کریں گے. یسوع مسیح کے کلام کرنے کو، یسوع مسیح کی بات چیت کرنے کو ہم دیکھیں گے. وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے. اور میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ خدا نے پھر سے ہمیں ایک موقع دیا ہے. خدا نے پھر سے ہمیں ایک چانس دیا ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو سکے. آمین. اور اگر ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل نہیں ہیں تو آسمان پر کیا ہوگا؟ خدا کی داہنی طرف بیٹھا کون ہے بولیے؟ یسوع مسیح. اور پھر میں اس کے سامنے ہوں گا. وہ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھے گا اور پھر کس کو دیکھے گا؟ مجھے دیکھے گا. وہ ریزیمبلنس دیکھے گا، وہ مشابہت دیکھے گا، وہ ہم شکل ہونا دیکھے گا. اور وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر تو پیس نہیں ہے، اس کے اندر تو سفرنگ نہیں رہی، اس کے اندر تو جو ہے وہ معافی نہیں رہی، اس کے اندر تو دستور کے موافق جو ہے عبادت خانہ میں جانے کا دستور نہیں ہے، اس کے اندر دعا کرنا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کمپیشن نہیں ہے، اس کی شکل نہیں مل رہی میرے بیٹے کے ساتھ. وہ کہے گا کہ عمران تو میرے سامنے نہیں رہ سکتا، تو تخت پر بیٹھ نہیں سکتا، چل تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، بلکہ تو کہاں پر جا جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہے. لہٰذا سٹینڈرڈ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کو باپ یسوع مسیح کی شکل کو دیکھے گا اور پھر یہ ہمیں دیکھے گا اور پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہے ہم شکل ہے کہ نہیں ہے. اگر ذرا سے بھی 19 اور 20 بھی نہیں چلے گا بلکہ پورے 100% ہے. آمین. کتنے پرسنٹ بولیے؟ 100% ہے. جیسا وہ کامل ہے ویسا ہی تمہارا، جس طرح دیکھیں کامل بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ کیا ہے؟ وہ کامل ہے. اسی طرح ہمیں بننے کی ضرورت ہوگی. ذرا سا بھی فرق نہیں، پورا قد، پوری شکل اس کے مطابق. پھر کرائسٹ باپ ہمیں کیا کرے گا؟ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس بادشاہی کو حاصل کرو جو برائے عالم سے پیش تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. آمین. عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اس بات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. آمین. ہم مقرر کیے گئے ہیں. ہم نے جات اس لیے پائی ہے، ہم نے توبہ بپتسمہ اس لیے پایا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کے کیا ہوں؟ بولیے ہم شکل ہوں. کہہ دیجئے کہ ہم مقرر نہیں کیے گئے، کہہ دیجئے کہ ہم نے یا توبہ اور بپتسمہ نہیں پائے، اس بات کا انکار کر دیجئے. پھر بیٹے کے ہم شکل بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہان کے ہم شکل بنے جس کی شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے. ہم بگاڑ کے ساتھ اس کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے ہیں. اس جہان کی شکل بگڑتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے. لہٰذا عزیز بہنوں بھائیوں، ہم بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کی جلالی صورت پر ہی آسمان پر جو ہے مقبول اور منظور ٹھہریں گے. آمین. پریز دی لارڈ. اب سنیے جو بات آج کرنے جا رہا ہوں، بیکم کرائسٹ لائک ان کمیونیکیشن. ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 46ویں آیت. یسوع مسیح کی بابت لوگوں کی کیا رائے تھی؟ کوئی اونچی آواز کے ساتھ یہ آیت پڑھ سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 46ویں آیت. پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. آمین. پیادوں نے کیا کہا؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. اب آپ سمجھیے، کمیونیکیشن ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہمارا بات چیت کرنا، ہمارا کلام کرنا، کمیونیکیٹ کرنا کسی کو، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے اشاروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آنکھوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ کوئی شاگرد نہیں تھا، یہ پیادے تھے.
फरीसियों ने सरदार काहनों ने और फरीसियों ने ये प्यादों को भेजा, जाओ रूमियों को भेजा, जाओ जो है वो उसको क्या करके करो, पकड़ कर लेकर आओ। और वो खाली हाथ आ गए। वो क्या हुआ? खाली हाथ आ गए। उन्होंने कहा कि तुम खाली हाथ आ गए हो, तुम इसे पकड़ कर क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा कि उसने कोई ऐसी बात नहीं हमने देखी। प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। ठीक है, चनाचा आप ये देखिए कि कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। वो न्यूट्रल थे, वो भीड़ के साथ कलाम कर रहा था और वो उनके दरमियान में खड़ा हो गया। वो प्यादे उनके दरमियान में खड़े हो गए, रूमी प्यादे। ठीक है, रूमी उसके कलाम को सुन रहे हैं। और जब उसने उसके कलाम को सुना, उसकी बातचीत सुनी, वो रियासत के खिलाफ नहीं था, वो कैसर के खिलाफ जो है वो काम जो है बातचीत नहीं कर रहा था, वो लोगों के खिलाफ बातचीत नहीं कर रहा था। वो जब वो कलाम कर रहा था, वो कम्युनिकेट कर रहा था, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी मुस्बत थी, वो इतनी आला थी। वो क्या हुआ, वो जो उसे पकड़ने के लिए आए थे, वो क्या हुआ, वो खाली हाथ लौट कर गए। और उन्होंने उनको जवाब दिया, प्यादों ने जवाब दिया कि ऐसा कलाम इंसानों ने नहीं किया। आमीन। हम यीशु मसीह की कम्युनिकेशन आप अनाजील के अंदर देख सकते हैं। उसने सिंगल शख्स के साथ की, यानी एक शख्स के साथ, उसने भीड़ के साथ, उसने हैकल में, उसमें घर में, गोया अंदर और बाहर उसकी कम्युनिकेशन आपको नजर आती है। लोग बातचीत करने में, कलाम करने में बड़े माहिर समझे जाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी बातों से बहुतों को गर्विदा कर देते हैं और वो दिल को मोह लेते हैं, और फिर जो है वो अपनी जो है वो धाग बैठा लेते हैं अपनी बातचीत के साथ। कई क्या होते हैं, बातों के जरिए से फंसा भी लेते हैं, बातों से फरेब भी दे लेते हैं, और कई इन बातों के फरेब में आ भी जाते हैं। हम क्या हैं? हम कैसे भी क्यों नहीं हैं? हम गर्विदा करने वाले हैं, मोह लेने वाले हैं, फरेब देने वाले हैं, फंसा लेने वाले हैं। यह गर्ज नहीं है कि हम किस तरह से क्या कर, किस तरह की हमारी कम्युनिकेशन है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम जो है कम्युनिकेशन करने में जो है बेटे की मानद है कि नहीं है। आमीन। हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और किस तरीके के साथ इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, आप करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। आपकी बोलचाल, मेरी बोलचाल, हर एक की डिफरेंट उस कलाम करने में कम्युनिकेशन के जरिए से है कि कम्युनिकेशन मेथड सीखते हैं ताकि जो है वो अपने अदारों में, अपनी जगहों में, या लोगों के साथ जो है वो अच्छी तरीके के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन इन सारी बातों में हमें ये देखना है कि क्या मैं जो है कम्युनिकेशन में, बातचीत में, कलाम करने में, गुफ्तगू करने में मैं बेटे की मानद हूं या नहीं हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैटर जो है वो क्या है कि कम्युनिकेशन में हमें मसीह की मानद बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो किस तरह से कम्युनिकेशन करता है, वो किस तरह पे बातचीत करता है, उसकी बातचीत का एजेंडा क्या है, उसके कलाम करने का एजेंडा क्या है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम करने का एजेंडा क्या है। हम जो दुनिया के अंदर गुफ्तगू करते हैं वो उसका एजेंडा क्या है। जब किसी के साथ बातचीत करते हैं या किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसका एजेंडा क्या है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब पहली दफा जब आप यीशु मसीह को जो है वो देखते हैं, जब उसने जो है वो कम्युनिकेशन करना शुरू की है, तो उसने जो है ये बात कही कि जब वो तौबा की पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर निकला, तो उसने जो है लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की। और वो क्या थी? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कम्युनिकेशन का जो एजेंडा था वो था खुशखबरी।
आमीन। उसकी खुशखबरी या खुशखबरी उसकी कम्युनिकेशन का वो क्या है, वो एजेंडा था। उसकी हर बात में, उसके हर फेल में, कॉल में जो है वो क्या था, वो कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज आपको नजर आएगी, जो है गॉस्पेल। उसकी जो है उसका एजेंडा, सबसे कम्युनिकेशन का जो एजेंडा है वो क्या है, बोलिए गॉस्पेल है। हालेलुया। इसलिए वो गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर वो क्या करता फिरा, वो खुशखबरी की तालीम देता फिरा। आमीन। और आप उसकी कम्युनिकेशन के अंदर देखेंगे, जो कुछ उसने कलाम किया, जो कुछ उसने सुनाया, जो कुछ उसने गुफ्तगू की, जो कुछ उसने कहा, आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि उसकी गुफ्तगू के अंदर किसी को लेट डाउन करना है। उसकी गुफ्तगू के अंदर कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी को जलील और रुसवा करना है। कभी भी आप उसकी गुफ्तगू के अंदर नहीं देखेंगे कि वो किसी को जो है वो धमकी अमीज गुफ्तगू जो है उसकी थी, बल्कि बाइबल क्या फरमाती है कि उसने गिरते हुओं को संभाला, उसने झुके हुए को क्या किया है, वो खड़ा किया है। आमीन। अजीज भाई भाइयों, गौर से सुनिए, चारों अनाजील, ठीक है, कौन कौन सी बोलिए, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, अनाजील, गॉस्पेल्स, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, पहली लफ्ज यानी भी ये पहले चैप्टर से पहले क्या लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील, ठीक है। मत्ती रसूल की, यीशु मसीह की इंजील मत्ती रसूल की मार्फत, आमीन, यही लिखा है। ये किसकी इंजील है, यीशु मसीह की इंजील। किसकी, किसके जरिए से, मरकस की मार्फत, मरकस की मार्फत यीशु मसीह की इंजील। लूका की इंजील, यह लूका की मार्फत यीशु मसीह की इंजील। यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की क्या है, ये अंजील है। अजीज बहन भाइयों, ये यीशु मसीह की अंजील है, ये यीशु मसीह की कम्युनिकेशन है। आमीन। ये यीशु मसीह की खुशखबरी है। लिहाजा इस अंजील के अंदर आप यीशु मसीह को बोलते हुए देखेंगे, आप यीशु मसीह को कम्युनिकेट करते हुए वो देखेंगे। उन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी को बयान किया है, उसकी बात को, खुशी की बात, यीशु मसीह की खुशी की बात। आमीन। हम खुशखबरी को क्या कहते हैं, खुशी की खबर, यह है खुशी की बात। आमीन, यही बात है। चुनाचे जब आप यीशु मसीह की कम्युनिकेशन देखते हैं तो वो उसमें क्या पाया जाता है, खुशी की बात। आमीन। क्या पाया जाता है, खुशी की खबर। आमीन। कम्युनिकेशन के अंदर जो क्राइस्ट कम्युनिकेशन है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बोलिए खुशी की बात। आमीन। अब इसका मतलब यह है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं कि बिकम क्राइस्ट लाइक इन कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में मसीह की मानव बनना है, तो फिर हमें अपनी बोलचाल, अपनी गुफ्तगू और अपने कलाम को कुछ चेंज करना पड़ेगा। आमीन। कुछ तब्दीली लाना पड़ेगी। चुनाचे हम देखना पड़ेगा कि हमारी गुफ्तार कैसी है, हमारी बोलचाल कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, हम दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, हम किस तरीके के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं। आमीन। सामरी औरत, एक अकेली औरत के साथ वो बात कर रहा था। वो थका मानव जो है वो कुएं पर बैठ गया और उसने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा यहूदी होकर तुम मुझसे पानी मांगता है। अब सुनिए यीशु मसीह की बात, वो क्या कहता है, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता, जिंदगी का पानी देता। आमीन। यह है क्राइस्ट कम्युनिकेशन, जो देने की बात करता है, जो वो मोल लेने की बात करता है। हम किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, हम किस तौर पर बातचीत करते हैं। और मैंने पानी मांगा है, तू पानी नहीं दिया, तू सवाब नहीं कमा रहा, तू यार तुझे एक गिलास पानी देने में क्या हर्ज है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता। अब घरों के अंदर ही, बच्चों के अंदर देख रहे ना कभी, ओके मैं तेरी नौकर लगा हुआ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जा उठ कर आप ही पी ले, तू क्यों नहीं पी लेता, तो तुम मुझसे क्यों मांगता। ठीक ऐसा ही। अजीज बहनों भाइयों, कम्युनिकेशन, ये गुफ्तगू, यीशु मसीह को देखिए वो क्या करता है, वो गुफ्तगू करता है।
आमीन। करते करते वो निजात पा गई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उसे कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, वो उसे झड़का ना 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 ना, झड़का उनको। उसे कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, वो ऐसा ही की है। अजीज बहनों भाइयों की गुफ्तगू मैंने रखती है, ठीक है। अब उसको वो शागिर्द बच्चों को झिड़क रहे थे, उसे कहा आने दो आने दो आने दो आने दो, रिसीव कर रहा है। आमीन। किस तरह से कैसे हम गुफ्तगू करते हैं, हमारा बोलचाल बच्चों के साथ, हमारा बोलचाल जो है वो फीमेल के साथ कैसा है, हमारा बोलचाल जो है वो मेल्स के साथ कैसा है, हमारा बोलचाल जो है वो भीड़ के साथ कैसा है, हमारा बोलचाल हैकल में कैसा है, हमारा बोलचाल घर में कैसा है, ये आज जो है हमें सीखने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह अपने एजेंडे से नहीं हिला है, यीशु मसीह अपने कम्युनिकेशन एजेंडे से नहीं हिला है। उसको मालूम है कि मेरा कम्युनिकेशन एजेंडा वो गॉस्पल है, खुशी की बात है, वो अच्छी बात है, वो जो है वो प्यारी बात है, वो मीठी बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ उसके मुंह के अंदर रखा गया है वो उसने उसी को सुनाया है। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, कलाम जो हमारे अंदर है ये क्या करता है, ये उठाता है, ये बहाल करता है, ये निजात देता है, ये सेहत बख्शता है। आमीन। मैं अगर आप मिसाल की किताब पढ़े तो ये बहुत कुछ है उसके हवाले से, जहां जबान की बाबत बहुत कुछ है, लेकिन मैं मसीह की बात करना चाहता हूं। आमीन। मैं मसीह की बात करता हूं। वो झुके हुए को उठाता है। बाइबल में उसने गरीबों को खुशखबरी दी। आमीन। उसने कुचले हुओं को क्या किया है, बोलिए, आजाद किया है। गरीबों को जो पसमानदा है उन्होंने खुशखबरी दी है। हम जो है पीस डालते हैं अपनी बात से, अपनी गुफ्तगू से, हम जो है वो रगड़ा लगाते हैं अपनी गुफ्तगू से। इस जगह के ऊपर भी खड़े होकर जो है पुलपट के ऊपर भी खड़े होकर ऐसे रगड़ा लगाते हैं कि जो है कलीसिया का सत्यानाश हो जाता है, मेंबर्स का जो है वो सत्यानाश होता है। जो है कलाम के अंदर जो है हम अपनी बात करते हैं, खुदावंद की बात नहीं करते हैं। बताइए क्राइस्ट ने जो है गॉस्पल के अलावा कोई बात की हुई हो, जो है वो खुशखबरी के अलावा कोई बात की हुई हो तो बता दीजिए। आमीन। याकूब के खत के अंदर क्या लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में क्या हो, तेज, और बोलने में धीरा, और कहर करने में धीमा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए कि प्यादो वो जो है वो रूमी थे, वो यीशु मसीह की बात को सुन रहे थे, और उन्होंने जो है वो उसकी बातों को सुनकर क्या किया, वो वापस आ गए। वो कह रहे भाई हमने उसमें कुछ ऐसा बुरा तो नहीं सुना है, वो हमने ये कैसर के खिलाफ तो नहीं उसको सुना, हमने जो है वो यहूदियों के खिलाफ तो उसको नहीं सुना है, हमने तो किसी को जो है ये नहीं कहा कि इसको मार दो, इसको छोड़ दो, इसे खत्म कर दो। ये जो दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज किस तरह की कम्युनिकेशन दुनिया के अंदर हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर सियासत के अंदर कैसी कम्युनिकेशन हो रही है, मार धाड़ की कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कम्युनिकेशन है। अगर इसमें क्राइस्ट होता तो वो बहुतों को खड़ा कर देता। हालेलुया। वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कलीसिया तो कर सकती है ना। आमीन। कलीसिया तो गुफ्तगू के अंदर जो है वो खड़ा कर सकती है। गुफ्तगू जो है वो कलाम जो है वो खड़ा करता, कलाम जो है वो कायम करता, कलाम जो है वो क्या करता है, वो बहाल करता है, कलाम सेहत भी बख्शता है। आमीन। वो अपना कलाम नाज़िल कर शिफा बख्शता है। आप जो है गुफ्तगू कीजिए, क्या होना शुरू होगा, हीलिंग वकू में आएगी। जो है यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरा खादिम शिफा पाता, तो क्या हुआ। आमीन। ये इस तरह करंट है कलाम के अंदर। आमीन। इसके अंदर इतनी पावर है, चाचे हम क्या करते हैं, हम बीमार भी करते हैं और हम सेहत भी बख्श सकते हैं, हम गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, हम मार सकते हैं और जिंदा कर भी सकते हैं। क्राइस्ट ने तो ऐसा ही कहा, ए लाजर बाहर निकला, तो क्या हुआ, बोलिए। कलाम अजीज भाइयों, इसके अंदर पावर है, इसमें कुव्वत है। बिकम क्राइस्ट लाइक इन कम्युनिकेशन।
हम अपने घरों के अंदर जिंदगी को दाखिल कीजिए, हम जिंदगी देना शुरू कीजिए, हम जो है सेहत बख्शना शुरू करें। मैं ये ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, देखते ही देखते मैं कमजोर होता चला जा रहा हूँ। मैं उससे कि मैं जो है मुझे तीर लगते हैं, मुझे जो है आवाजें मिलती हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना जो इसने सुनाया है। ये तो अलग ही इसकी जबान है, इसकी गुफ्तगू अलग है, इसकी कम्युनिकेशन जो है वो अलग है। पता नहीं इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से जो है वो सीख लिए है। हम दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इसके लिए जो है पैसा खर्च किया जाता है। बाइबल पढ़ ले, आमीन, यीशु मसीह को पढ़ ले, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगे। आमीन। वो क्राइस्ट को इनफरादी तौर पर पढ़े, क्राइस्ट को हैकल में पढ़े, क्राइस्ट को जो है वो अपने भीड़ में पढ़िए, क्राइस्ट को घर में पढ़िए। वो क्या करता है, वो जो है उठाना और अपना तरक्की बख्शने वाली बातें, मुस्बत बातें। यीशु मसीह ने कभी भी नेगेटिव बात नहीं की है। आमीन। उसे मालूम है कि जो है ये बंद गूदे में से गुजर जाता है और ये जो है ख्यालों को या डिस्टर्ब कर सकता है, ये ख्यालों को जो है वो इस्तराब के अंदर लेकर आ सकता है। आपको मालूम है क्या कहा बाइबल में, खुदा का कलाम जो है वो क्या करता है, वो बंद गूदे में से होकर गुजर जाता है, उसका कलाम, क्राइस्ट कलाम। लेकिन आप देखें कि इंसानी कलाम जो है वो चीर कर रख देता है, वो मार डालता है। आमीन। हमारा कलाम कैसा है, हमारी बातचीत कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, ये इस मामले में भी हमें मसीह की मानद बनना है। हमें इसमें क्या करना है, बोलिए। वो बाप के कहे हुए कलाम को सुनाता था। पुराने अहदनामा में गौर से सुनिए आप, खुदा बावाज़ बुलंद होकर कलाम उसने किया, ठीक है। वो कोई सीना पर कैसे कलाम किया, बावाज़ बुलंद कलाम किया। जब वो कलाम उसने किया तो सारे ये इस्राएली अपने खैमों में क्या हुए, कांपने लगे और डर गए। उसे कहा कि खुदा हमसे कलाम ना कर। उसने कहा ठीक है मैंने कलाम करता, ठीक है, लेकिन आप गौर से सुनिए, मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में क्या करूंगा, डालूंगा और तुम उसकी क्या करना, सुनना। आमीन। लिहाजा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी बात नहीं करता, किसकी बात करता हूं, जो मुझे बाप कहता है मैं उसकी बात वो करता हूं। आमीन। चुनांचे यीशु मसीह ने बाप की कही हुई बातों को वो सुनाया है। आमीन। चुनांचे वो आया और उसने यह बावाज़ बुलंद बातें तो नहीं की है जिससे डर और खौफ पैदा हो, ठीक है। खुदा ने देखा कि ये डर गए, कांप गए, उसने कहा अच्छा है ये कांप गए हैं, लेकिन अगर कहते कि मैं कलाम नहीं करूंगा तो मैं एक कम्युनिकेटर भेजता हूं। आमीन। मैं एक ऐसा कम्युनिकेटर भेजता हूं, वो क्या करेगा, मैं उसके अंदर अपना कलाम डालूंगा। चुनांचे यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर, मैं आपको हकीकत बताऊं, दुनिया का बेहतरीन कम्युनिकेटर है। आमीन। जिससे यह आसमान के खुदा की कम्युनिकेशन यह हमारे साथ उसका राबता कराया है। और चुनांचे अगर हमारी कम्युनिकेशन आसमान तक जाती है, होती है, तो इसका रीजन क्राइस्ट है जिसने बाप की कही हुई बात को हमारे तक पहुंचाया है और हम उसके वसीले से अपनी बात जब बाप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें क्राइस्ट कम्युनिकेशन को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना है। आमीन। यीशु मसीह को बाबत आप जानते हैं क्या कहा जाता था, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, मैं हूं। आमीन। ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। वो जो है वो तालीम देता, लोग उसकी सुनते। निकोदेमुस ने क्या कहा था, रात के पहर में आया, उसने कहा कि हम जानते कि खुदा ने तुझे उस्ताद जो है करके भेजा है, ठीक है। वो जानते थे, ठीक है, ये बातचीत अच्छी करता है, ये कलाम ठीक करता है। और खुदा ने जो है, अब ये देखिए कि क्राइस्ट ने जब भी वो कम्युनिकेट करता था, लोग जो है भीड़ की भीड़ वो जमा हो जाती थी।
हम कैसी बातें करते हैं कि हमसे लोग जब वो छुट जाती हैं, हमारे घरानों के अंदर जो है तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, ऐसे बोले कि जमा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि सभा की मलका, गौर से सुनिए, जिस सभा की मलका जो दूर से जो सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए आई, दूर से क्या करने आई, उसकी हिकमत को सुनने के लिए आई, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। यहाँ पर कौन है बोलिए? सुलेमान से भी बड़ा, उसे सुनिए, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने क्या है, वो पोशीदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा। इसको सुने, इसको पढ़िए, इसको देखिए कि वो क्या कहता है। और जब आप उसको जब पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे, आप हिकमत हासिल करेंगे, आप शादमानी हासिल करेंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है मिठास को हासिल करेंगे। गजलात की किताब के अंदर लिखा है, उसका मुंह अज़बज़ शीरी है। उसका मुंह क्या है बोलिए? अज़बज़ शीरी है। मरियम उसके कदमों में बैठती थी और उसने कहा कि इससे अच्छा हिस्सा क्या कर लिया है, वो चुन लिया है। अगर हमारी गुफ्तगू के अंदर जो है वो झोल है, अगर हमारी गुफ्तगू के अंदर जो है वो इतनी पावर नहीं है, तो उसके कदमों में बैठिए ताकि अच्छा हिस्सा हम चुन सकें। हम जो है हमारी गुफ्तगू के अंदर ठट्ठाबाजी है, हमारी गुफ्तगू के अंदर जो है वो लताफत नहीं है, हमारी गुफ्तगू के अंदर शेरी, हम मीठी जबान नहीं है, हम तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं, तो फिर जो है यीशु मसीह के कलाम को जो हिकमत और मार्फत से भरा हुआ है, उसकी जिंदगी को जो है टटोलिए और आप फिर देखिए कि हिकमत की बात निकलेगी। नदानी और अहमकाना गुफ्तगू हमारी जिंदगी से छुट जाएगी और हम हिकमत की बातें कहना शुरू करेंगे। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी क्या है बोलिए? बड़ा है। सभा की मलका उसको सुनने के लिए आ गई है। इसको सुनिए, जो आसमानी कम्युनिकेटर है, हेवनली कम्युनिकेटर है। जब आप इसे सुनेंगे, हिकमत हासिल करेंगे, यह दानिश हासिल करेंगे, अहमकाना नादानी वाली बातें हमारी जिंदगी से छुट जाएंगी और हम जो है दानिशमंद बातें कहने वाले होंगे। आमीन। Praise the Lord. Become Christ-like in communication. लेकिन कम्युनिकेशन तो उसी वक्त सुने, उसके मुताबिक कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। उसको सुनिए, इसे पढ़िए। मैं आपको जो है ये कहना चाहता हूँ कि आप अंजील को जो है बड़े अज़बज़ होकर जो है वो पढ़िए, बड़ी तनदई के साथ इसे पढ़िए। उसकी एक एक बात को जो यीशु मसीह के मुंह से निकली है, उसकी एक एक बात को जो है वो पढ़िए, ताकि हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर यह बहुतों के लिए बाइस से बरकत बन सके। आमीन। यीशु मसीह बेस्ट कम्युनिकेटर इस दुनिया का है, जिसने जो है वो क्या किया है, वो दुनिया को निजात अता की है। उसकी खुशखबरी से आज तक जो है लोग क्या कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, सलामती पा रहे हैं। उसकी हर एक बात के अंदर जो है वो कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। और वही जो है बातें, वही जो कम्युनिकेशन अगर हमारी जिंदगी के अंदर होगी, तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या कुछ हम अपनी जिंदगियों के अंदर और दूसरों की जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। Amen. Praise the Lord. उसकी खुशखबरी, उसकी बातें जो है आज भी जो है वो असर अंदाज हो रही हैं और असर रखती हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारा कलाम पुरफजल और क्या हो बोलिए? नमकीन हो। और ये नमकीन और पुरफजल उसी वक्त होगा जब जो है यीशु मसीह की कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी के अंदर होगी। Praise the Lord. बाइबल मुक़द्दस जो है यीशु मसीह की बाबत क्या कहती है? यशायाह की किताब में आप उसे पढ़ें तो वहां पर वो लिखा हुआ है कि यशायाह 42:2 में लिखा है, वो ना चिल्लाएगा, ना शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। आमीन। लेकिन तो भी उसकी जो है उसकी कम्युनिकेशन का डंका जो है वो बजता है। आमीन। फिर भी उसकी बातों का चर्चा आम है। अगर जो बाइबल में क्या लिखा है, वो ना चिल्लाएगा, ना शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी, लेकिन तो भी आप ये देखें कि उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। ये कैसा कम्युनिकेटर है?
हालेलुया। वो चिढ़ाता नहीं है, वो शोर नहीं करता है, उसकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो पुरमानी है, वो शोर नहीं है। हमारी गुफ्तगू शोर तो नहीं करती है, हमारा जो है वो हम इस तौर पर चीखते चिल्लाते तो नहीं है, हम जो है गुफ्तगू या कलाम करते हैं, इसमें शोर तो नहीं पाया जाता कि दूसरा कान बंद कर लेता है। हमारी बातों के ऊपर कोई कान बंद तो नहीं कर रहा है, हमारी बातों के ऊपर कोई जो है वो ये तो नहीं समझ रहा कि ये शोर है। हमारी बातें इस कदर ज़ुमानी हो चुकी हैं, हमारी बातें इतनी ही खराब हो चुकी है कि लोग जो है वो उसके ऊपर कान जब वो बंद कर रहे हैं। अजीज बहन भाइयों, बिकम क्राइस्ट लाइक इन कम्युनिकेशन, जिसको सुनने के लिए जो है वो लोग जो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग सुबह सवेरे जो है उसको सुनने के लिए जो है वह हैकल में जमा हो जाते थे। आमीन। सुबह सवेरे उसको सुनने के लिए जो है वो जमा हो जाते थे। हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी जो है अपने बोल चाल को इस तरीके के साथ या रखें। उसका एजेंडा खुशखबरी का था, अच्छी बात का था। हमारा एजेंडा जो है कौन सा है? हमारी गुफ्तगू का एजेंडा क्या है? बोलिए। गाली गलोच हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा धमकाना है, हमारा एजेंडा क्या है? जो है नप के रखना है। हमारा एजेंडा क्या है? या तीर बरसाना है। हमारा एजेंडा क्या है? गिराने का है। हमारा एजेंडा क्या है? झुकाने का है। हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? कि अपना झंडा लगाना है। क्राइस्ट कम्युनिकेशन क्या है? गॉस्पेल, गुड न्यूज़। आमीन। कौन सी? खुशी की बात, अच्छी बात, यही बात, अच्छी बात। यीशु मसीह की गुफ्तगू का एजेंडा क्या है? बोलिए। खुशी की बात। वो कलाम सुना रहा था। वो क्या कर रहा था? कलाम सुना रहा था। भीड़ में से एक आवाज आई और बड़ी ऊंची आवाज थी, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक वो छाती जिसको तूने क्या किया? चूसा। तेरी बातों ने हमें मोह लिया है, तेरी बातों में जो है हमें जो है वो खुशी बख्शी है। तू साहिब इख्तियार के साथ तालीम देता है। इसकी जो है गुफ्तगू इस तौर पर थी, वह अपनी बात के अंदर जो है वो इख्तियार वो रखता था, वो उसके लिए झोल नहीं था। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके मुंह में जो है उसकी जुबान में छल नहीं था। आमीन। वो ऐसे ज़ुमानी बातें नहीं करता था। हर बात के अंदर जो है कि जो है वो रंग बिरंगी बातें नहीं करता था। उसको तो एक ही रंग आता था, उठाओ, बढ़ाओ, फैलाओ, सेहत दो, निजात दो। आमीन। उसकी बातों में एक ही रंग था, जिंदगी का रंग, निजात का रंग, शिफा का रंग। हमारी बातों में दो रंगी क्यों हैं? एक रंग कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें दो रंगी बातें नहीं थी, बल्कि बोलिए कौन से रंग वाली थी? लाल लाल रंग की थी। कौन से रंग की थी? लाल थी, जिसमें खून, जिसमें जो है बर्दाश्त, जिसमें क्या है? निजात, शिफा, आमीन, सेहत की बातें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ इंसान के अंदर है वही क्या होता है? वो बाहर आता है। इंसान के दिल में ज़नाकारियाँ, चोरियाँ, हरामकारियाँ, हर तरह की जो है वो झूठ, फरेब, ये सब कुछ कत्ल गारत पाई जाती है। जो कुछ इंसान के अंदर है वही क्या होता है? वही बाहर आता है। लिखा है कि वो जो कुछ अंदर से निकलता है वो इंसान को क्या करता है? नापाक करता है। अजीज बहनों भाइयों, हम अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से अपने आप को नापाक कर रहे हैं। हम नापाक हो रहे हैं। हमें कोई और नापाक नहीं कर रहा है, हमें किसी चीज से नापाकी नहीं मिल रही है। हम खुद ही अपने आप को नापाक करते हैं। अपने अंदर गंद रखा हुआ है। हमने अपने अंदर जो है वो हर तरह का मकरूहात अपने अंदर छपाई हुई है, जो रोजाना निकालते रहते हैं, कभी बीवी के और कभी बच्चों के ऊपर, कभी जो है वो बाहर, कभी अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं? गंद फैला रहे हैं, गंद निकाल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? खुशी की बात। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो है वो आसमान की बादशाही का फकीर वो क्या करता है? वो अपने खजाने से जो है वो पुरानी और नई चीज़ों को क्या करता है? पुरानी और नई चीज़ें, अपने खजाने से पुरानी और नई चीज़ें निकालता है। हमारा दिल का खजाना, इसमें क्या क्या है? प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मत्ती 12:36 के अंदर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब होगा। यीशु मसीह ने कोई नकम्मी बात नहीं की है, लिहाजा यह मसीही, ईमानदार, जो खुदावन के लोग हैं, जो निजात याफ्ता हैं, जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो क्या करने वाले हों? उनकी जिंदगी में नकम्मी बात नहीं, बल्कि कौन सी बात होनी चाहिए? पुरफजल बातें, नमकीन बातें, और कौन सी बातें? खुशी की बातें। हालेलुया, खुशी की खबरें। आमीन। लोग आपके हक में क्या कहते हैं? क्राइस्ट के हक में क्या कहते हैं? लोग उसके हक में पता क्या कहते थे? ये एलिया है, ये यिर्मयाह है, ये यशायाह है, और ये यीशु मसीह ने कहते ये पानी जो है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके हक में से वो जी उठा है। तुम हमारे हक में क्या कहते हैं? जैसे कि तू खुदा का क्या है? कदूस है। आमीन। तू क्या है? खुदा का कदूस है। एक दिन यीशु मसीह को कह रहे, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम भी छोड़ना चाहते छोड़ जाओ। तो पतरस ने क्या कहा? उसके पास आकर कहा, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जिंदगी की बातें हमारे पास क्या है? जिंदगी की बातें कहाँ हैं? तेरे पास है। हमारे अंदर किस तरह का कम्युनिकेशन स्किल है? तेरे पास ऐसी कम्युनिकेशन है, जिंदगी की बातें तुझसे निकलती हैं, ठीक है? प्यार की बातें, तसल्ली की बातें, जो है वो उठाने की बातें, सेहत बख्शने की बातें, निजात की बातें हैं। मेरे पास क्या है? पास्टर इमरान तेरे पास क्या है? एल्डर ज़ाहिद तेरे पास क्या है? मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास क्या है? हम तुझे छोड़कर क्यों जाएं? तेरे पास तो जिंदगी की बातें हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। बिकम क्राइस्ट लाइक इन कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन में, राबते में, बातचीत में, कलाम करने में मसीह की मानद बनिए। आमीन। कब बोलना है, कब नहीं बोलना, यह हमें मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह ने खुशखबरी को डंके की चोट के ऊपर जब वो दिया, और उसने खुदा की पूरी मर्जी को पूरा किया है, लेकिन एक दिन क्या हुआ है? वो चुप कर गया। आमीन। तू क्यों चुप है? यह वो क्या कहता है? तू क्यों? पिलातुस कहता है तू क्यों चुप है? ठीक है, बोल। मुझे छोड़ने का और मुझे जो है पकड़ने का इख्तियार है। वहां पर यीशु मसीह बोला, तुझे तेरे पास नहीं, अगर तुझे ऊपर से ना मिलता तो तुझे तेरा मुझ में कुछ नहीं है। तू क्यों चुप है? He knows तुझे कब या साइलेंट होना है और कब बोलना है। हम किस तरह से बोलते हैं, कब कब बोलते हैं और कब कब चुप होते हैं, हमें यह देखना होगा। हमें अपनी जिंदगी के अंदर यह जांचना होगा, इसकी पड़ताल करना होगी कि ऐसे फर बोलते रहते हैं या ऐसे ही जो है अपनी जबान को यह हमने छोड़ दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्राइस्ट को देखिए, वो बोलता, वो चुप रहता। आमीन। वो चुप हुआ, वो बोला। चनाचे एक क्राइस्ट की मानद बनिए, जिसे मालूम है कि मुझे कहां पर चुप होना है, मुझे कहां पर क्या करना है, वो बोलना है। आमीन। हम में यह क्रिश्चियन सेंसेस जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए, जिसे क्या हो सके, हमें पता हो कि मुझे यहां पर बोलना है और मुझे यहां पर नहीं बोलना है। तो चुप क्यों है? ये बात क्या बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी है? यीशु मसीह चुप हुआ और वो भेड़ की मानंद उसे ले गए। जैसा भेड़ अपने कतरने वालों के लिए के सामने चुप रहती है, वो उन सब के सामने वो चुप रहा। उसे मालूम है कि ये टाइम मेरा चुप रहने का है, ये टाइम मेरा कुर्बान होने का है, यहाँ पर मुझे चुप होना है। लेकिन हम कई जगह के ऊपर क्या करते हैं? चुप नहीं रहते हैं। हम जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर चुप, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वो क्या करते हैं? बोलते ही चले जाते हैं। इसलिए क्या करने की जरूरत है? बोलिए। हमें अपने कब बोलना और कब नहीं बोलना, ये कैसे हो सकता है? जब हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है इस बात को समझेंगे कि मुझे मसीह की मानद कलाम करने में मसीह की मानद बनना है, तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने बोलना है, और तब मुझे मालूम पड़ेगा कि तब मुझे क्या करना है। गौर से सुनिए, आखिरी बात सुनिए। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें पकड़वा कर जो है अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा तो क्या होगा?
تمہیں بتایا جائے گا کیا بولنا ہے. ہولی اسپرٹ کیا کرے گا؟ بتائے گا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے. تو کیا کرنا؟ وہ کہنا. آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. غور سے سنیے، آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ مجھے کیا کرے گا، بتائے گا اس دن کہ مجھے کیا کہنا ہے. Why not today my dear؟ اب کیوں نہیں وہ ہولی اسپرٹ آپ کو بتا رہا؟ یا ہم اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس وقت جو سننے کے لیے کہ کیا کہنا ہے ہولی اسپرٹ مجھے بتا، میں جو ہے وہ اس کے سامنے کیا کہوں. یہی بات ہے نا، یسوع مسیح کہ تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، تمہیں بتایا جائے گا. اب بھی بتاتا ہے ہولی اسپرٹ، وہ چپ نہیں رہتا ہے. یسوع مسیح آج بھی وہ بولتا رہتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کہوں گا، وہ کہوں گا. وہ اگر وہ اس دن کہے گا تو وہ اس دن بھی کہتا ہے. وہ اس دن بھی وہ بات کرے گا، وہ ہمیں بتائے گا. جب مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، جب ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کہ ہمیں کیا کہنا ہے، اس ہولی اسپرٹ جو ہے وہ مجھے کہے گا کہ عمران یہ کیا ہے. تو عمران تو اب کیوں نہیں یہ کہتا جو میں تجھے کہتا ہوں. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. گوری بتائیے، ہم اس وقت کا انتظار کریں. ہاں، ہولی اسپرٹ مجھے کیا کرے گا، بتائے گا. کلام کیا کرے گا، وہ مجھے میرے کان میں کہے گا کہ یہ کیا ہے. وہ اب بھی کہتا ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اس possible جب ہم کیا کریں گے، بیٹے کی ہم شکل بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. پھر کیا کہیں گے، خدا ہولی اسپرٹ بول، خدا یسوع بول. آمین. وہ کیا کریں گے، وہ کہے گا. پھر ہم بولیں گے اپنے شوہر، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چرچ میں، اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب پر. کیا کہیں گے، اس کی بات کو کہیں گے. آمین. اس کی بات کو سنیں گے اور کہیں گے. یہ پریکٹس کرنا شروع کریں. کرائسٹ کمیونیکیشن کو لینا شروع کیجیے. اپنی اسپرچل سینس کو، اسپرچل کانوں کو کیا کریں، وہ تیز کریں تاکہ کیا ہو سکے اس دن بھی جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کیا کہنا ہے، تب ہولی اسپرٹ ہمیں کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ کہے. جب تک ہماری پریکٹس اس وقت نہیں ہے تو اس وقت کیسی ہو سکتی ہے. لہٰذا میں کلیسیا کو، بہنوں، بھائیوں اور بچوں سمیت سب کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو سننے، مسیح کی باتوں کو سننے، اس کی کمیونیکیشن میتھڈ کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو ابھی سے تیار کرنا شروع کریں. اس کو تیز کرنا شروع کریں. سننے میں کیا ہو، بائبل مقدس میں لکھا ہے تیز. یہ اس کو سننے کے لیے تیز کریں تاکہ کیا ہو سکے، جب بڑی مصیبت ہو، جب بڑا دکھ ہو، جب مجھے بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ ختم ہو جائے، دن اس وقت بھی ہولی اسپرٹ جہاں مجھے کہے گا جس طرح سے ابھی بھی مجھے وہ کہہ رہا ہے. آمین. اس لیے پولس رسول نے کہا، مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو. آج سے یہ پریکٹس کیجیے، مسیح کے کلام کو کثرت سے بسنے دو تاکہ ہم اس کو بولنا شروع کریں اور اپنے جو ہے فضاؤں کو خوشی اور شادمانی سے وہ بھرنا شروع کر دیں. آمین. Become Christ-like in communication. اور آخری بات غور سے سنیے، متی کی انجیل 5واں باب سے لے کر 7ویں باب کی اینڈ تک کیا ہے، پہاڑی واس. آمین. دنیا کے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے، اسپرچل اعتبار سے اور ہر طرح سے جو ہے وہ گفتگو کمیونیکیشن کے اعتبار سے دی بیسٹ سرمن ہے. آمین. اگر کسی نے جو ہے گفتگو سیکھنی، کسی نے اسپرچولیٹی سیکھنی، کسی نے اخلاقیات سیکھنی ہے تو وہ کیا کرے، وہ جو ہے متی کی انجیل میں یہ 5ویں باب سے پڑھنا شروع کرے. اسے کمیونیکیشن سکلز کا معلوم پڑ جائے گا. آمین. آئیے اپنے سر